Hello everyone, Atma Namaste. I am Prerna from Chakulia, Jharkhand. I am a associated certified pranic healer, a pranic healing instructor of basic pranic healing, and run a center here. I welcome you all to the session of tea time with our special guest. Today we have with us Sneha Sundaria from Kolkata. She's a instructor of basic and advanced pranic healing. She's a qualified CA and later took pranic healing as a career. And recently she's running two centers in Kolkata. So I welcome Sneha to our tea time session. Welcome Sneha to our session. You can unmute yourself. Yeah, hi Prerna. Hi Sneha. Hello everybody. This is so nice to be here today. Am I audible? You can hear me? Yes. Yes. Sneha, would you like to do a short invocation? Yes, sure. Okay, we'll start with an invocation. Can you please close your eyes? Okay, please inhale slowly. Exhale, center yourself. Inhale slowly. Exhale, center yourself. Bring your focus to your breath. Inhale slowly. Exhale. To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, to my spiritual teacher, to all the spiritual teachers, holy gurus, holy masters, saints, archangels, holy angels, and spiritual helpers, to my higher soul and divine self. We humbly invoke for your divine love, for your divine mercy. We humbly invoke for deeper understanding, knowledge, and clarity. Thank you for helping us apply these beautiful teachings in our day-to-day life, especially with regard to parenting. Thank you. Thank you. In full faith, we thank you. Inhale the blessings. Okay, you may open your eyes. Okay, namaste everybody. Yes, pray now. So Sneha, everyone has their own stories as to why they come into pranic healing. Would you like to share your story with us? You were a CA and how you came into pranic healing and took pranic healing as a career? Yes, so I come from a Marwadi family. So when you are a Marwadi, the obvious career choice is to become either an MBA or a chartered accountant because your business runs in your blood, right? So that's how I also wanted to be a CA. And I was a good student. I was a really good student. So it was easy to study. But when I got to the business side of it, when I joined the corporate and I had an amazing job, I did have a very good job, but I was not happy. Since class 5, I used to have this breathing disorder. And it would be panic related. So if I would feel stressed or scared, I would have breathing anxiety. I could not breathe. It was not physiological. Everything was okay with body. It was more psychological. So naturally, there was no treatment for it. And as I went into, like studies, higher studies, competitive exams, career, started getting escalated. It would be really, really bad. Sometimes I would be bedridden for 2-3 days. Then one of my friends introduced me to meditation on twin hearts. I did that meditation for about 6 months, after which I stopped having, those panic attacks and no breathing difficulties. I did not even notice that I had got better. My colleagues and my friends started saying that you're not taking sick leaves. Then I was like, okay, this works. I went into the basic pranic healing class, more like to experience what it is. But I did back-to-back courses. People say that you need time and all of those, but I was literally doing 1 week after the other. And once I got a hang of what pranic healing is, especially Arhatic Yoga and the practices of Arhatic Yoga, I started helping people. I realized this is what I want to do for the rest of my life. Then I quit my job. It was a very big decision to quit a very well-paying good job and take up pranic healing as a full-time career. But my body was very young. I was 25, 26. I thought this is the time in my life where I can take risk. I do not have big commitments.
So I left the job. I gave myself 6 months. It's been 6 years. I have never looked back. I am like, okay, I'm sorted. This is what I want to do. So that's how, I was like, this is what I want to do. Yes. Very interesting. So, Neha, would you like to start your topic or should we start with some questions? Whatever you like. I could give my perspective. मैं अपना Yeah. parenting का experience बता सकती हूँ. So, actually, I got pregnant during pandemic, and मेरा बेटा अभी 15 महीने का है. एंड मेरा बेटा जब से 3 महीने का था तब से मैं वापस पढ़ा रही हूँ एंड एक्टिवली सेंटर पे जा रही हूँ, हीलिंग्स कर रही हूँ. एंड टिल द डे मेरा मतलब जिस दिन मेरी डिलीवरी थी उस दिन दोपहर तक मैं एक्टिवली काम कर रही थी, मैं कंप्लीटली काम कर रही थी. एंड आफ्टर 10-15 डेज ऑफ डिलीवरी आई वाज हीलिंग अगेन. तो बहुत सारे स्टिग्मा है, बहुत सारे कैल्सिफाइड आइडियाज है अबाउट प्रेगनेंसी, डिलीवरी, पोस्ट डिलीवरी, पेरेंटिंग, बच्चों को संस्कार कैसे देने हैं, which I think using pranic healing techniques जो मास्टर ने इतनी ब्यूटीफुल सिंपल टीचिंग्स दी है उनको अप्लाई करके आप अपनी लाइफ को बहुत कंफर्टेबल बना सकते हैं. वन ऑफ द बेस्ट अंडरस्टैंडिंग इज बच्चे ये सब जानते हैं कि बच्चे मंकीज के जैसे होते हैं, वो रेप्लिकेट करते हैं. ठीक है, मैं और मेरे हस्बैंड गौरव दोनों हीलर्स हैं, ट्रेनर्स हैं. हमारा ज्यादातर समय सेंटर्स पे जाता है एंड हम अपने बेटे को साथ में लेके आते हैं. वन रूम इज डिवोटेड इन बोथ माय सेंटर्स टू माय सन. तो आप एक्चुअली देखोगे हम लोग जब हीलिंग कर रहे होते हैं वो भी हीलिंग बोल के पास आकर के ही स्टार्ट्स मूविंग हिज हैंड एंड फिर बोलेगा आई सब्सक्राइब दो. दे आर मंकीज, दे लिटरली कॉपी व्हाट वी डू. आपके बच्चे की कोई भी उम्र हो, आपका बच्चा न्यू बॉर्न हो सकता है या 20, 25, 30 साल का हो सकता है, इट डज नॉट मैटर. जो एनर्जी हम कैरी करते हैं वो स्पॉन्टेनियसली हमारे बच्चे के साथ शेयर होती है. हमारे और हमारे बच्चे के बीच में एक मेजर एनर्जी लिंक होता है. आपने प्राणिक हीलिंग कोर्स किया है या नहीं किया है, इट रियली डज नॉट मैटर. वी ऑल नो दैट वी आर वेरी डीपली कनेक्टेड टू आवर किड्स. जो भी आपका एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन होगा एज अ कपल, ठीक है, सिर्फ आप नहीं, आप और आपके हस्बैंड, जो भी आपका एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन है वो स्पॉन्टेनियसली आपके बच्चे में रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाएगा. So when we talk about parenting, the parenting is not what you do with the child. ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चे को क्या कर रहे हैं वो पेरेंटिंग है. आप खुद के साथ क्या कर रहे हैं, that is right parenting. अगर मेरे को मेरे बच्चे को हेल्दी ईटिंग हैबिट सिखानी है, the only way to do that is to make sure me, my husband, my family has healthy eating habits. So संस्कार आप बोरो नहीं कर सकते. संस्कार वो है जो आपके अंदर है, that which you have inside of you, and it radiates, and the next generation simply takes that up with you. So this is what I've learned as a young parent, and पर्सनली मेरे को लगता है मेरे को बहुत बेनिफिट हो रहा है. मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी लाइफ बहुत सिंपल है. बहुत लोग बोलते हैं कि कैसे मैनेज करते हो, आई हैव टू रन माय हाउस एंड देन देयर आर सेंटर्स एंड क्लासेस एंड हीलिंग्स, लॉट ऑफ सोशल कमिटमेंट्स. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मदरहुड बहुत इंजॉय कर रही हूँ. कोई कितना भी बोले मेरे को नहीं स्ट्रेसफुल लगता है. मेरे को लगता है कि बहुत मजा आ रहा है. वर्कशॉप्स हो रही होती है तो पास वाले रूम में मेरा बेटा रहता है, एंड आई ड्यूरिंग ब्रेक्स आई गो एंड प्ले विथ हिम, कम बैक, टीच द क्लास अगेन. इट इज फन इफ यू जस्ट नो हाउ टू रेगुलेट एनर्जी. अगर आपको एनर्जी रेगुलेट करना आता है, कॉन्शियसली एनर्जी शेयर करना आता है, तो पेरेंटिंग में बहुत मजा आता है. तो स्नेहा, प्राणिक हीलिंग पेरेंटिंग में कैसे हेल्प करता है? ओके, एक सबसे सिंपल टेक्निक जो हम सिखाते हैं सबको जो प्राणिक हीलिंग में आते हैं, whether they are students or not, is meditation on twin hearts, twin heart meditation. जब भी आप मेडिटेशन करते हैं, आप you bring down lot of energy of love and peace. एक कॉमन प्रॉब्लम रहती है, आई हैव हर्ड फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल कि मदर बनने के बाद, स्पेशली मदर बनने के बाद, उनको ऐसा लगता है कि उनको अपने लाइफ के बहुत सारे हिस्से छोड़ने पड़ते हैं टू अकोमोडेट अ चाइल्ड और कपल ऑफ जो जितने भी आपके बच्चे हैं. अगर आप मेडिटेशन और ट्विन हार्ट्स करते हैं तो आपके ऑरा में बहुत लव एंड पीस का एनर्जी आता है. हमारे बच्चे को
irrespective of their age. Okay, मेरी जो भी एज है, मुझे आज भी मेरी माँ से प्यार की उम्मीद है. I still want understanding from her, right? तो अगर मेरे ऑरा में सफिशिएंट लव एंड पीस है, जो मैं आफ्टर मेडिटेशन के बाद अपने बच्चे से शेयर कर सकती हूँ, माई चाइल्ड विल ऑलवेज फील फेड. आप 5 घंटे 10 घंटे अपने बच्चे के साथ रह सकते हैं और आपका बच्चा फिर भी क्रैंकी हो सकता है, क्योंकि आपके खुद के सिस्टम में मे बी उतना लव एंड पीस है नहीं. बट वेन यू टेक आउट दैट हाफ एन आवर टू मेडिटेट, आप खुद से मेडिटेशन कर रहे हैं और उसके बाद 2 मिनट 1 मिनट जितनी नीड है उस हिसाब से बच्चे को लव एंड पीस से ब्लेस कर रहे हैं, आपका बच्चा ऑलवेज फेड फील करेगा, हमेशा हैप्पी रहेगा. That is how pranic healing has really helped me balance different areas of life. I have not left my career, I have not left my social obligations, nothing. और सब easily हो रहा है. That is one. Number two, मेरा बच्चा छोटा है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स रोज होते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल टीथिंग, जब बच्चों को दांत आते हैं तो वो बहुत क्रैंकी होते हैं, पॉटी होती है, दे कांट स्लीप. आई इमीडिएटली अप्लाई हीलिंग. जब वो मतलब वॉक करना सीख रहा था, रोज गिर जाता था. अब इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग, मेरे घर में सबको पैनिक फीलिंग आती है, वी ऑल हील हिम. अगर मुझे लगता है कि उसके अंदर कोई बैड हैबिट डेवलप हो रही है, देन वी अप्लाई लिटिल हीलिंग ऑन हिम. नॉट रियली प्राणिक साइकोथेरेपी, उसको अभी नहीं जरूरत है उसकी, बट मे बी जो हमने बेसिक प्राणिक हीलिंग में ही सीख लिया है. सो एज अ पेरेंट आई फील लाइफ इज वेरी सिंपल. कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, उसको ट्रांसम्यूट करना या चेंज करना बहुत ईजी है. I can't hear you. Can't hear you. So, how do we balance various areas of our life while parenting? Yes. ये एक बहुत स्पेशली विद फीमेल बॉडीज, जो मैं अभी ऑलरेडी बोल रही थी, ये बहुत बड़ा एक स्टिग्मा है, एक थॉट फॉर्म है कि अगर आप मदर बन गए हैं तो अब आपको या तो करियर छोड़ना है या सोशलाइज, मतलब यू हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग टू बी अ मदर. अगर आप अपनी पर्सनालिटी के सर्टेन पोर्शंस छोड़ देते हैं टू बिकम अ पेरेंट, ओके, आपको हमेशा वो वॉइड फील होगा. आपने इस तरह के डायलॉग सुने हैं पेरेंट्स ने, हमने तो अपनी पूरी जिंदगी तुमको दे दी और अब तुमको मेरी इज्जत नहीं है. ऐसा होता है ना, क्योंकि हमने एक्चुअली यू डू दैट लेवल ऑफ सैक्रिफाइस, और फिर आपको लगता है करके मिला कि अभी भी तो ये जिद्दी है, अभी भी तो बात नहीं सुन रहा है, अभी भी तो वर्च्यूज नहीं आ रहे मेरे बच्चे में. अगर आप होलसम बच्चे क्रिएट करना चाहते हैं, हम ऐसी जनरेशन अपने बात चाहते हैं जो डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ में कॉम्पिटेंट है, बैलेंस करना चाहते हैं, तो हमको उनको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना पड़ेगा. माई चाइल्ड विल लर्न ओनली एज मच एज आई डू. अगर मैं स्पेशली इफ आई हैव अ गर्ल चाइल्ड और मैं उसको ये दिखा रही हूँ कि टू बी अ मदर आई हैव टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग एल्स दैट आई हैव, दैट इज द संस्कार आई एम गिविंग हर. या तो वो आगे जाके सेम रिपीट करेगी, नहीं तो शी विल बिकम रेबिलियस. डेमोन्स्ट्रेशन करके ही आप अपने बच्चों को कुछ सिखा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एज अ कपल, अगर आप लड़ झगड़ के चीख चिल्ला के अपने प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और फिर आप अपने बच्चे को बोलेंगे कि प्यार से बेटा प्रॉब्लम सॉल्व करो, वो नहीं जाता है. वो देखता है कि पेरेंट्स लड़ रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वही वो सीखेगा. इफ I want my son to balance his relations, his health, his career, I have to demonstrate that. One of the best way to demonstrate मेरे लिए जो काम करता है वो है to do my meditations in the morning. मैं अपने meditations करती हूँ और वो एनर्जी अपने पूरे फैमिली के साथ, स्पेशली विद माई चाइल्ड, मैं शेयर करती हूँ. Once I do that and I make sure that दिन का आधा से 1 घंटा सवेरे के समय मैं उसके साथ स्पेंड करती हूँ, where I'm not distracted. I don't take phone calls, I don't reply to WhatsApp, I don't watch television, कुछ नहीं, मैं सिर्फ वहां बैठती हूँ. He may be playing around me, वो उतना गोदी में रहने वाला बच्चा नहीं है, तो वो घूम रहा है और मैं वहां हूँ. My presence feeds him because there is a lot of energy in my aura which can be easily shared. So consciously I'm just sharing my love and peace, my love, my peace, my happiness with him. उसके बाद दिन भर मेरा बच्चा वेल फेड फील करता है. इट्स लाइक सुबह अगर पेट भर गया तो बच्चा कुछ देर शांत रहेगा ना. Then in the afternoon again I share maybe half an hour with him, and at night I make sure to tell him stories, spend at least half an hour 40 minutes with him before he goes to bed. बाकी समय मेरे लिए फ्री है, बाकी समय मैं मेरी एक्टिविटीज करती हूँ, एंड आई मेक श्योर कि मेरा बच्चा डिफरेंट एक्टिविटीज में डिफरेंट लोगों के साथ इन्वॉल्व है. दिस इज फॉर मी.
ये मेरे लिए है, बट यू कैन अप्लाई दिस इन योर लाइफ नो मैटर व्हाट इज द एज ऑफ योर चाइल्ड. आपका बच्चा अगर स्कूल जाता है तो बाय द टाइम योर बिफोर योर सन और डॉटर कम्स बैक होम, यू शुड हैव अ फिक्स शेड्यूल ऑफ प्रोडक्टिव वर्क. तब जब आपके बच्चे घर आएंगे, यू हैव आल्सो डन समथिंग अमेजिंग, दे हैव डन समथिंग अमेजिंग, you have something constructive ideas to share, and that's how we bring up a next generation that knows how to value time and do good stuff. How does parents' relationship affects a child? Yes. Look, अगर आप लड़ाई कर रहे हो और कमरे के अंदर भी कर रहे हो और बच्चा बाहर है, हम सबकी एक एनर्जी फील्ड है और वो एनर्जी बच्चे को मिलती है. एक बहुत ब्यूटीफुल, आई कांट डेमोन्स्ट्रेट इन ड्राइंग, बट व्हाट आई कैन से इज बिफोर द मैरिज हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में 4 लाइन समझिए एनर्जी एक्सचेंज. ठीक है. जब बच्चा होता है तो मदर क्या करती है, 3 लाइन बच्चे में डाल देती है, फादर 1 लाइन बच्चे में डाल देता है. एंड देन देयर इज दैट डिस्प्यूट, जब फादर को लगता है कि द मदर इज नॉट गिविंग मी टाइम. हस्बैंड बोलते हैं अब तो तुमको मेरे लिए टाइम नहीं है. आइडियली व्हाट शुड हैपन इज मदर से 1 लाइन बच्चे में जाएगी, फादर से 1 लाइन बच्चे में जाएगी, सो दैट द चाइल्ड इज बैलेंस्ड एंड द रिमेनिंग 3 रिमेन्स बिटवीन द पेरेंट्स. इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ होलसम रिलेशनशिप विथ योर स्पाउस. इफ यू डोंट, आप बच्चे के सामने बहुत स्वीटली एक दूसरे से बात कर सकते हैं, बट अगर वो एनर्जी नहीं है, इरिटेशन है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, क्रिटिसिज्म है अपने स्पाउस की तरफ, वो एनर्जी आपके बच्चे को जाती है. यू मे डू इट बिहाइंड क्लोज डोर्स, स्पेशली अगर आपका बच्चा उसी रूम में है जहां आप लड़ रहे हैं. इट्स नॉट नाइस. वो बच्चा वो एंगर के थॉट फॉर्म्स, वो एंगर का एनर्जी, वो इरिटेशन का एनर्जी, वो फ्रस्ट्रेशन का एनर्जी इनबिल्ट करेगा. दैट इज व्हाई parenting is about working on yourself, working on each other as a couple, and then the child, it's like अगर ट्री हेल्दी है तो फ्रूट तो हेल्दी होगा ना. आप फ्रूट को घिसते जा रहे हो कि तुम हेल्दी हो जाओ, बट रूट्स में प्रॉब्लम है. सो हेल्दी किड्स कम फ्रॉम अ हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स. What are the benefits of inculcating the virtues at an early age? अगर बच्चों को हम बहुत कम एज में ही वर्च्यूज के बारे में बताएं तो उसका असर कैसे होता है बच्चों पे? Okay, there was this project that Pranic Healing had taken up called Prana Kids, जहाँ पे छोटे बच्चों को, kids even below 5 years of age, उनको small exercises like gratitude या respect या forgiveness की exercises कराते थे हम लोग. अभी भी बहुत जगह पे वो प्रोजेक्ट चल रहा है. बच्चे की, अगर आप प्रीनेटल पोस्टनेटल साइकोलॉजी के बारे में समझते हैं, तो जैसे अपने लिखा हुआ है कि अभिमन्यु ने तो कुरुक्षेत्र क्या था वो, व्हाटएवर, बेसिकली द कॉन्टेक्स्ट वाज कि बच्चा जब मदर के वुम में होता है तो वो सब सुनता है, समझता है, इनकलकेट कर लेता है अपने अंदर, उसके संस्कार वहां से शुरू हो जाते हैं. सो व्हाइल प्रेग्नेंट इट इज इंपॉर्टेंट टू रीड गुड टेक्स्ट. सो वहां से एक्चुअली वर्च्यूज डेवलप होना शुरू होते हैं. आफ्टर डिलीवरी, जब बच्चा डिलीवर होके पेरेंट्स के पास आ जाता है, तभी भी जिस तरह के शब्द हम बोलते हैं, जिस तरह की एक्टिविटीज हम करते हैं, वो बच्चा रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है. द फर्स्ट 5 years ऑफ चाइल्ड्स लाइफ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल. उस समय जो आपने वर्च्यूज सिखा दिए बच्चे को, वो एक्चुअली उनके संस्कार बन गए हैं. आप 18 या 20 की एज में बच्चे को ग्रेटिट्यूड नहीं सिखा सकते हैं. इट बिकम्स डिफिकल्ट. उसके लिए अनलर्निंग करना पड़ता है, इनग्रेटिट्यूड हटाना पड़ता है, एंड फिर ग्रेटिट्यूड आ सकता है. बट अगर आपका, स्पेशली इफ सम ऑफ अस आर लकी इनफ टू हैव यंग किड्स, वी हैव टू मेक श्योर दैट वी स्टार्ट टीचिंग देम सिंपल थिंग्स लाइक, अगर उन्होंने खाना खाया तो दे शुड नो हाउ टू पिक अप देयर प्लेट एंड कीप इट इन द किचन. If somebody gives them something, then they should learn to say thank you genuinely. अगर उनसे गलती हुई है तो उनसे सिंपल चीजें सॉरी बुलवा लेना. अगर वो गुस्सा कर रहे हैं, ओके, बाय द वे, बच्चे अगर गुस्सा कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इट्स इंपॉर्टेंट टू लेट देम वेंट. नहीं तो हम कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली ये बात डाल देते हैं कि गुस्सा करना गलत है या आपका ये इमोशन ही गलत है. हमको उनको गुस्सा रेगुलेट करना, ट्रांसम्यूट करना सिखाना है, या उस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है वो सिखाना है. जैसे मेरे हस्बैंड एक बहुत अमेजिंग चीज करते हैं. अगर मेरा बच्चा कभी इरिटेट हो जाता है एंड चिल्लाने लगता है कि नहीं मुझे ये चाहिए ही, छोटा है, आई वांट दिस, एंड आवाज अगर तेज करता है,
तो उसको एक्चुअली गौरव कभी भी वो सामान नहीं देते हैं. ही विल से तुम अपनी आवाज धीरे करो, प्यार से मांगो. You lower your voice, and then you ask for it. My son is just 15 months, okay? और ये 2 महीने से गौरव उसके अंदर घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, and actually उसका इफेक्ट दिख रहा है. Now if he wants something and he raises his voice, उसको पता है कि पापा नहीं देने वाले हैं, मेरे को कोई नहीं देगा घर में. तो वो अपने आप वॉल्यूम कम करता है, तो उसको पता है. That's how small things, but they become big things in future. स्नेहा, ये तो छोटे बच्चों के लिए था, लेकिन अगर जिनके बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, या तो टीनेज क्रॉस कर रहे हैं या टीनेज में एंटर कर रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ कुछ टेक्निक है या कुछ अभी भी वो कर सकते हैं अपनों बच्चों की Yes, कुछ हैबिट्स को चेंज करने के लिए? yes. It is my favorite area, by the way. I love to work with young adults. I don't call them teenagers. I don't call them children. I call them young adults. Okay. अगर आप अपने young adults में, teenagers में, okay, कुछ भी change करना चाहते हैं, तो आपका feedback mechanism ठीक होना चाहिए. बिना रिस्पेक्ट दिए उनको आप सोचते हैं कि वो आपको रिस्पेक्ट देंगे, कभी नहीं होने वाला है. दे आर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट. ठीक है, अगर आप उनको नोटिस करेंगे, एनीबडी बिटवीन द एज ऑफ 13 एंड अबव टुडे, यू टॉक टू देम, हमसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है वो लोग, ओके, एंड दे आर फार सुपीरियर सोल पर्सपेक्टिव से भी अपने से. उनकी बात को सुनना बहुत जरूरी है. हम क्या करते हैं, हम उनको बोलते हैं तुम ऐसे मत करो, तो फिर वो क्वेश्चन पूछते हैं क्यों ना करूं, तो फिर हमारे पास आधे बार तो ढंग का जवाब नहीं होता, तो हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, या हम टू मच लव दे देते हैं एंड वी लेट देम गेट स्पॉइल्ड. दोनों अप्रोच काम नहीं कर रही है. द अप्रोच दैट वर्क्स फॉर टीनेजर्स, अगर आपका बच्चा 13 प्लस हो चुका है एंड 18 प्लस है फॉर श्योर, रिस्पेक्ट काम करता है. लिसन टू देम, हियर देयर पर्सपेक्टिव, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक केस आया था मेरे पास कि एक बच्ची, शी वाज डेटिंग अपने मतलब फैमिली फ्रेंड के बेटे को, एंड दे डिड नॉट टेल द पेरेंट्स, एंड वो झूठ बोलते गए बहुत दिन तक, एंड ऑब्वियसली एक पॉइंट पे पता चल गया. एंड एक सेट ऑफ पेरेंट्स ने बहुत चीखा चिल्लाया, बट दूसरे सेट ऑफ पेरेंट्स सेट डाउन एंड दे आस्क्ड, तुमने छुपाया क्यों, तुमने छुपाया क्यों, एंड दे जस्ट लिसन्ड टू हर पर्सपेक्टिव. एंड लास्ट में बात इतनी सी निकली कि मम्मा बट उसने बोला था कि मत बोलना घर पे. एंड देन द पेरेंटिंग इज नॉट अबाउट कि झूठ मत बोलो, द पेरेंटिंग इज टू यूज डिसर्नमेंट, कि अगर कोई और आपको बोल रहा है कि ऐसा नहीं बोलना है घर पे, तो आप अपनी तो बुद्धि लगाओगे. सो इफ यू लिसन टू योर टीनेजर्स एंड अबव, दे आर वेरी इंटेलिजेंट. उनको रिस्पेक्ट दीजिए, उनकी बात सुनिए, बात सुनने के बाद उस एनर्जी को ट्रांसमिट करिए. प्लीज यूज प्राणिक साइकोथेरेपी. आप अगर प्राणिक साइकोथेरेपी ग्रेजुएट्स है, ग्रेट. अगर आप नहीं है, टेक हेल्प. गो टू प्राणिक हीलिंग सेंटर्स नियर यू, टेक प्राणिक साइकोथेरेपी. नंबर 2, ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट तो मैं बोल ही चुकी हूँ. नंबर 3, लॉट ऑफ इट हैज टू डू विद फॉरगिवनेस. अगर आपने 13, 14, 15 साल एक तरह का व्यवहार कर लिया है अपने बच्चे के साथ, आपके बच्चे के भी दिमाग में एक इमेज है कि दिस इज हाउ माई पेरेंट्स आर, और उसी हिसाब से वो आपसे बात करते हैं. सो बहुत फॉरगिवनेस करने की अपने को जरूरत है. बट यस, लिसनिंग, रिस्पेक्ट, लॉट ऑफ फॉरगिवनेस एंड प्राणिक साइकोथेरेपी, इट रियली हेल्प्स. अगर बच्चे में कोई बुरी आदत आ भी गई, तो उसको ये मत बोलिए कि तुम ऐसे हो. वन ऑफ द चक्रा इज मेल फंक्शनिंग. अगर आपके बच्चे को एडिक्शन इशू भी है, फॉर एग्जाम्पल आजकल बहुत सारे बच्चे अल्कोहल या सिगरेट एडिक्शन हो जाता है, इट्स ओके. एक बुरी आदत है बच्चे को, बच्चा बुरा नहीं है, बच्चे को एक बुरी आदत लग गई है, आइडेंटिफाई करिए, अलग है दो, और उस बुरी आदत के लिए आप प्राणिक साइकोथेरेपी करा सकते हैं. थैंक यू स्नेहा, सो मच ऑफ क्लैरिटी, क्योंकि मेरे भी बच्चे बहुत बड़े हो चुके हैं, तो आई होप दिस हेल्प्स मी. एनी क्वेश्चंस, अगर किसी को ऑडियंस में कोई क्वेश्चन पूछना है स्नेहा से? I would like to answer this. Garima ने एक question पूछा है. What about in joint family? Parents are trying to teach something, but grandparents just give them what they want. In that case, what do we do? Right? Garima ji, first of all, thank you for this question, because I also live in a joint family setup. Not really joint family, but basically with my father-in-law and brother-in-law. I think my father-in-law and my parents are doing an excellent job with my son. बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ उनके एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ के
कंपैरिजन में बहुत रिस्ट्रिक्टेड है. बट यस, हमारी पेरेंटिंग टेक्निक उनकी पेरेंटिंग टेक्निक से अलग हो सकती है, हमारी राय अलग हो सकती है, ओपिनियंस अलग हो सकती है. इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू कम टुगेदर एंड सिट एज अ फैमिली कि ये एक बच्चा है अपने घर का, ये एक आत्मा है जिसकी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर. अब एज अ टीम हमको क्या एनर्जी शेयर करनी है उससे. फॉर एग्जाम्पल माई फादर इन लॉ, उनका पेशेंस इज अनदर लेवल. मतलब आई हैव ट्रिमेंडस रिस्पेक्ट फॉर हिज पेशेंस. सो वी हैव टोल्ड हिम कैटेगरीली, पापा हम चाहते हैं कि आप सब, मतलब मेरे बेटे के अंदर पेशेंस का एनर्जी ट्रांसफर कर दीजिए, आप उसको बस पेशेंस सिखा दीजिए. माई ब्रदर इन लॉ, ही इज वेरी डीप इनटू स्टडीज, वो बहुत स्टडी करता है. तो वी सेड ओके, व्हाट वी वांट फ्रॉम यू इज आप स्टडी का एनर्जी डाल दीजिए. माय मॉम इज एक्सट्रीमली जेनरस. ओके मम्मा, आप जेनरोसिटी सिखाएंगे. इट्स अ टीम एफर्ट. हम अकेले अपने बच्चों को सही संस्कार देने के लिए केपेबल ही नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर सारी गुड हैबिट्स हो ये जरूरी नहीं है. सो इफ यू हैव अ जॉइंट फैमिली, थिंक ऑफ इट एज अ ब्लेसिंग फॉर योर चाइल्ड कि इतने सारे लवली पीपल है जो उनका ध्यान रख रहे हैं. बट sit down and have conversations. अगर आपको ऐसा लगता है there is resistance, आप हफ्ते भर blessings करिए. Whatever you want understanding from your in-laws, तो आप उनको understanding से, maturity से bless करिए, बैठिए और फिर बात करिए. That's the right way to give different approach of life to your child. तब आपका बच्चे की डेवलपमेंट जो है ना वो बहुत wholesome होगी. डिफरेंट जनरेशन से ब्यूटीफुल चीजें वो लोग सीख पाएंगे. So somebody is asking कि उसकी 12 years की daughter है and she 12 behave as if I'm nothing for her and takes me as granted. तो यस, ये बहुत कॉमन है. हाँ, बाय द वे हमने भी इस तरह की चीजें की है हाँ पास्ट में. Dimple, thank you Dimple for your question. But balancing, that's what I said. A mother is supposed to practice gentle love but tough love also. अगर आप बहुत ज्यादा लव देते हैं तो there is a possibility that the child will get spoiled and eventually become a liability to you and to the society. ये मास्टर बोलते हैं, ग्रैंड मास्टर ऐसा बोलते हैं. हमको क्या करना है, हमको बैलेंस करना है लव एंड डिसिप्लिन को. 80% love but 20% has to be discipline. So also Dimple, you should check आप खुद को कितना रिस्पेक्ट करते हो. If you respect your time, if you respect your energy, usually people around you will also do that. So maybe have a look at that also. Purvi, you want to ask something? नमस्ते. नमस्ते. बहुत ही अच्छा लगा आपको सुन के. मैंने फर्स्ट टाइम अटेंड किया है आपका सेशन और हमारे फैमिली में ना सब प्राणी खिलर है. इवन मेरा बेटा है 20 इयर्स का, उन्होंने भी आरएटी कर लिया है, क्रिया शक्ति कर लिया है. और मुझे एक बात बोलना है कि अगर आप प्राणी किलिंग फैमिली से हो ना, तो आपका बेटा बेटी जो भी रहेगा 16 प्लस होते हैं ना, आप उनको पहले ये कोर्स सिखाइए. जो बदलाव आप उनकी लाइफ में लाना चाहते हो ना, धीरे धीरे वो सीख जाएंगे, क्योंकि वो ऐसे परिवार से जुड़ेंगे ना कि जहाँ आपको सिखाने की जरूरत नहीं रहेगी. मास्टर की टीचिंग के साथ जैसे कनेक्ट हो गए ना, तो वो उनमें बहुत बहुत ज्यादा फर्क हो जाएगा, उनकी लाइफ पूरी चेंजिंग हो जाएगी. जो मैंने फील किया है वो मैं शेयर कर रही हूँ अभी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. दैट इज ट्रू पूर्वी जी. मेरे घर में जैसे मेरा देवर है, ही जॉइंट, वो हमसे काफी छोटा है, ही जॉइंट प्राणी किलिंग एट द एज ऑफ 60 and regularly arhatik yoga practice karta hai. Now he is in the process of becoming a instructor also. So yes, for sure this happens, but at the same time doing courses and practicing as a family, बहुत बहुत फर्क है इसमें. हमारे घर में हम चारों आदमी हर दिन सवेरे आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस करते हैं, वर्च्यूज डिस्कस करते हैं. यू नो, अपना जो हिंदू ट्रेडिशन है हमारा, उसको हम डिस्कस करते हैं. So the quality of energy in the house has to evolve. So yes, बच्चों को कराइए, प्लीज कराइए, पूरा परिवार मिलके करिए. I mean, if you feel inspired, please go ahead, do it. I have seen my family go through a 360-degree change क्योंकि हम सब ये करते हैं. There is a question: what if mother's energy stays angry and irritated and it is moving into the child? Now the child cries
even at smallest uncomfortable events, and screams and shout and is violent at 7 years. What to do? Okay, who asked this question? Okay, anyways, Yash. Yeah, hi Yash, namaste. This is what I was trying to say कि आप बच्चे को अगर काम रहने बोलेंगे भी, but one of the parent has this energy, ठीक है, एकदम एंगर का, वायलेंस का, इरिटेशन का एनर्जी है, बच्चा वही देख रहा है, बच्चे को लगता है कि अगर अनकंफर्टेबल सिचुएशन है तो चीखना और चिल्लाना ही उसका सोल्यूशन है। गुस्सा करो, चीखो, चिल्लाओ, वायलेंट हो जाओ, मेरी मन की बात हो जाएगी। In this case specifically, it is the mother who needs healings. Mother को अगर आप सिर्फ twin heart meditation भी introduce करा सकते हैं, because she needs to learn to regulate her anger. Anger regulate करने के 2-4 तरीके हैं. One is meditation on twin hearts. There is pranic psychotherapy. There is breathing, different breathing exercises which we teach. And of course, आप mother को एक अच्छे pranic healer counselor के पास ले जा सकते हैं, जो बहुत प्यार से उनको ये सारी बातें समझा सके। अगर आप अपने बच्चे में कोई बदलाव देखना चाहते हैं, वो बदलाव पहले हमारे मतलब मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे में बदलाव आए, वो एनर्जी मेरे को मेरे अंदर चेंज करनी पड़ेगी। एंड बाय द वे, इफ आई चेंज माय एनर्जी, वो नेचुरली बच्चे में रिफ्लेक्ट करती है। सो यश, यू हैव टू टेक द मदर एक्चुअली टू समबडी। Okay, mother has learned pranic healing and still does not want to practice pranic psychotherapy. Pranic psychotherapy, आप अगर यश, अगर आप you know, if the spouse, if you are the husband, I don't know, but another family member who is a practicing pranic healer can meditate and transfer energy of love and peace to the mother and imagine that same loving energy going to the child also. So मतलब आप जब ब्लेसिंग करेंगे, आप इमेजिन करेंगे कि लव का एंड पीस का एनर्जी मदर को जा रहा है, एंड मदर का तो बहुत बड़ा कॉर्ड जुड़ा है बच्चे के साथ, तो मदर के थ्रू बच्चे को भी पीस का एनर्जी जा रहा है। बट आइडियली शी शुड टेक साइकोथेरेपी और शी शुड डू साइकोथेरेपी ऑन हरसेल्फ। ओके, ये एक somebody else is also asking question. Prerna, is it okay if I read the questions on my own? Yeah. So my mother-in-law is not in good terms with me and she has isolated me from all relatives. How can I get any help from her? I always do forgiveness, but she is always behind me like a microscope. My kids are witnessing all these. My daughter is 12 plus. Okay, very interesting. हम forgiveness करते हैं ना, तब हम एक mistake करते हैं। Forgiveness दिन में आप कितने समय करते हो? 10 मिनट या 15 मिनट? उसके बाद क्रिटिसाइज नहीं करना है, मेंटली भी। आप 10 मिनट 15 मिनट हर दिन अपनी मदर इन लॉ को फॉरगिवनेस करिए, जो भी आप 7 साइकिल जो है फॉरगिवनेस वाला को आप करिए, उसके बाद उनके बारे में भूल जाइए। लिव योर लाइफ, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक पॉजिटिव सीड डाल रहे हैं फॉरगिवनेस करके, और फिर एक फोन कॉल पे या एक इरिटेशन, एक एंगर से 2 सीड नेगेटिव भी डाल रहे हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस चलता जा रहा है, अपने को बदलाव नहीं दिखता है। बदलाव देखना है तो फॉरगिवनेस करिए एंड रिमेंबर, रिलीज, लेट गो, उसको छोड़ दीजिए, अपना काम करिए, अपने काम पे फोकस करिए। ऐसा करने से धीरे 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 नेगेटिव जो अपन प्लांट कर रहे हैं कर्मा, वो बहुत कम हो जाएगा, पॉजिटिव कर्मा बढ़ना शुरू हो जाएगा, life will become better. So you should give yourself maybe 2 months and do this forgiveness without any criticism, without anger, irritation. Acceptance practice करिए। जब आप acceptance practice करेंगे, आपको भी acceptance मिलेगा। Okay. थोड़ा टफ लगता है। क्या टफ लगता है? forgiveness करना? हाँ, मतलब अगर लगातार वो इरिटेटिंग वर्क चलते रहता है, कितना फॉरगिव करते जाएं, फिर इरिटेटिंग वर्क आता है। Okay. सुशील जी, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। बट अगर कोई ऐसा इंसान है हमारे जीवन में जो हमको बार बार इरिटेट कर रहा है, बार बार गुस्सा कर रहा है, तो किसका कर्म है? मेरा कर्म है। मेरा। तो अब मेरे कर्म के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। फॉरगिवनेस करके कौन अपना कर्म बदल रहा है? मैं। किसके लाइफ में पीस आएगा? मेरे लाइफ में। मुझे पीस चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। तो मैंने करते जाना है। हाँ, अरे करते जाना है। मतलब मास्टर की टीचिंग्स इतनी ब्यूटीफुल है, आप अगर करते जाएंगे, आज जो आदमी आपको इरिटेट कर रहा है, आपको कुछ समय बाद आपके लाइफ में वही इंसान एंजल जैसा फील होगा, क्योंकि वो डंबल है ना,
जिम में जैसे डंबल होता है जो मसल बनाने में काम आता है, ये इंसान अपने जीवन में एक डंबल के जैसा है जो हमको इनर स्ट्रेंथ देता है, और एक बार इसको हैंडल कर लिया तो लाइफ में कुछ भी हैंडल कर सकते हैं। राइट। अच्छा, दिन भर में 24 आवर्स में कितनी बार फॉरगिव कर सकते हैं उस इंसान को? एक ही बार करिए ना, ज्यादा उसके बारे में सोचना क्यों अपने। अच्छा। अपना काम करिए, एक बार करिए, बाकी समय कंस्ट्रक्टिव चीजों में दीजिए, एक बार फॉरगिवनेस करके भूल जाइए। मैंने इच्छा होती है कि जल्दी रिजल्ट आए, तो एक्चुअली किसी बंदे को मैं कर रहा हूँ महीने 1.5 महीने से, तो बहुत लिटिल चेंज आया है, बहुत लिटिल, थोड़ा सा पॉजिटिव चेंज आएगा, लेकिन 1.5 महीने कभी कभी अगर बहुत डिफिकल्ट रिलेशन है, बहुत दिन सालों से चल रही मुसीबत है, तो हो सकता है कि 3 महीने भी करना पड़े, 6 महीने भी हो सकता है। बट अगर आप करते जाएंगे ना, मैं आपको बता रही हूँ, यही इंसान आपकी लाइफ में एक एंजल बन जाएगा। करके देखिए, एक्सपेरिमेंट करिए, वैलिडेट करिए। राइट। आप अपना सेशन टाइम को थोड़ा बढ़ा दीजिए ना। आपका जो सेशन टाइम है अप टू 5, इसको 5:30 तक कर दीजिए अभी। That's not up to me. Yes, Prerna. Do we have Yes, other questions also, Prerna? Samsung's. One, I think someone is raising the hand. Samsung SM. Any question? Okay. Samsung. So I think almost all the questions are done. I think Nupur, there is one. Girija has written something more. My mother-in-law and father-in-law always asks me to quit the house. It is very painful to hear. अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं गिरिजा, जहां आपकी फैमिली इस तरह का आपके साथ व्यवहार कर रही है, यू हैव टू ब्रिंग दिस अप विथ योर हस्बैंड, सिट डाउन एंड टॉक टू योर हस्बैंड एंड से दैट इस तरह की चीजें मेरे साथ हो रही है जो एक्सट्रीमली पेनफुल है। ये कॉन्वर्सेशन करने से पहले आपके ऑरा में और चक्रास में बिल्कुल भी एंगर नहीं होना चाहिए। तो पहले गिरिजा, इफ यू डोंट माइंड, आर यू अ प्राणिक हीलर? आपने प्राणिक हीलिंग कोर्सेज किए हैं? Yes, is that a yes? If you have done pranic healing courses and you are going through something like this, best to consult your basic pranic healing instructor या जिस भी instructor से आप comfortable है उनके पास जाइए। Take help, okay? Take proper help. Take healings, guidance, forgiveness करिए। आप अगर वो anger फेंक रहे हैं, आप भी anger फेंकेंगे, आप उलझ जाएंगे इसी में। Even if they want to throw anger, let them throw anger. You radiate peace and love. And then you sit down with your husband and you say that, look, this is not a positive environment to live in, especially with the kids. बच्चों को एक होलसम एनवायरनमेंट चाहिए बड़े होने के लिए। वो छोटे छोटे पौधे हैं, उनको फल लगने के लिए तो अच्छी खाद, मिट्टी, धूप, पानी चाहिए ना। अगर खाद गलत मिलेगी तो वो फल अच्छा नहीं लगेगा। सो आप बोलिए कि वी नीड टू हैव अ कॉन्वर्सेशन, बट कॉन्वर्सेशन पीसफुल, गुस्से में चीख के चिल्ला के नहीं। ओके, प्लीज विजिट योर सेंटर, आपका जो भी सेंटर है। Sneha, I have a question. Hi, Nupur. Hi. First of all, I must say it's a beautiful session. So many things to learn from you. But एक चीज पूछनी है कि अगर पेरेंट्स के बीच में कुछ टेंशन है, सपोज कुछ प्रॉब्लम है, तो उसकी एनर्जी से बच्चे को कैसे प्रोटेक्ट करें? Yes, Nupur, this is a very good question. Are you a pranic healer, Nupur? Yes, I'm a psychotherapy. Yes. साइकोथेरेपी ग्रेजुएट। देखिए, लाइफ बहुत लंबी है और ऐसा हो नहीं सकता कि कभी भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हो अपने स्पाउस के साथ, है ना। नंबर वन, द डे वी डिसाइड टू ब्रिंग डाउन अ चाइल्ड, उससे पहले अपना रिलेशनशिप सॉलिड होना चाहिए अपने स्पाउस के साथ। बट अब जब बच्चा है तभी भी जीवन चलता रहेगा, वी विल हैव चैलेंजेस। ड्यूरिंग दोज टाइम्स हील योरसेल्फ। अपने को इमोशन मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा पेरेंट बनने के लिए। So if I'm feeling massive amount of anger towards my spouse, a portion of that anger goes to my child also. वो invariable है, वो होगा ही होगा ना। तो मुझे खुद को anger disintegrate करना है। और if you are going to have a big conversation with your husband, which may be slightly volatile, shield your child, जो आपको प्राणिक साइकोथेरेपी में सिखाता है। अगर आप साइकिक सेल्फ डिफेंस ग्रेजुएट है तो उसमें और भी बेटर शील्डिंग सिखाते हैं, so that you and your spouse also get that space to process your emotions and your thoughts and your conflicts.
बट अपना बच्चा भी प्रोटेक्टेड है. सो यू यूज प्राणिक हीलिंग टेक्निक्स टू प्रोटेक्ट योर चाइल्ड. ठीक है? Okay. Okay. Thank you so much. Thank you, Sneha. Such a wonderful session. So many questions answered. I hope many questions are answered in this question, क्योंकि parenting को लेके हमेशा एक doubt, एक कुछ ना कुछ रहता ही है question. So thank you for the wonderful session. I think the only takeaway जो हम सब अगर ले जा सकते हैं पेरेंटिंग के बारे में from the session is parenting is not managing the child. Parenting is managing oneself. That's it. Yes. ये याद रहेगा तो हम अच्छे पेरेंट्स बन जाएंगे. Thank you, Sneha. Thank you, Sneha. Shall we do a closing invocation? Yes, yes, yes. Thank you for this Sneha. opportunity. I'm also very grateful. I also had a good time. Let's close with a prayer. Please close your eyes. To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, to my spiritual teacher, all the spiritual teachers, Holy Gurus, Holy Masters, Saints, Archangels, Holy Angels, and spiritual helpers, to my higher soul and divine self, we thank you for your wonderful teachings. We thank you for these wonderful energies. Thank you for helping all of us assimilate, remember, and apply these teachings, these understandings, especially when dealing with our kids. Thank you for the blessing of being a parent. Thank you for using all of us as instruments to raise the next generation with greater love, kindness, and understanding. With thanks and in full faith, so be it, so be it, so. Okay, thank you. Thank you, Prerna. Thank you so much. Thank you, Sneha. Thank you, Thank everyone. you so much. Thank you. Lovely session. Thank you. Sneha. Thank you, Prerna. Thank you. Thank you.